Good afternoon. You are watching EduSet lecture, and today we have a program on budget analysis, and we have also discussed in a little bit in a study lecture the making of budget and how does it have impact on the life of people. Today we will discuss from the perspective of marginalized section of the society, and for discussion on this very topic, we have in studio Mr. Javed Alam Khan. He is a research scholar in the Delhi West think tank and have great interest in the social budgeting and other area of budgets. So I hope his knowledge and experience will help us to understand the budget of 2011 and 12 from the perspective of marginalized section. So on your behalf, I welcome Mr. Khan for a research lecture. Welcome, sir. Okay, thanks. I will be starting my discussion with the question that will focus what is budget and why it is important for this marginalized section of the society. So, like budget is a very important area and it translates government promises and commitments into practice, and also it reflects the socio-economic priorities of the government. Further, the budget would also have the impact on the lives of every citizens of India and community. Further, it would also have a great impact on the marginalized section of the society. Those are basically, excluded from the political, like influence and other things. My question is, who are the marginalized in India? If we see the, like composition of the population, so there are 4 or 5 kinds of the marginalized groups in India. Let me begin with religious minorities. The religious minorities constitute 19% of the total population as per census 2001. Similarly, the scheduled caste, they have 16% of the total population as per census 2001, and also the scheduled tribes, who constitute around 8% of the total population. The women have their share in the total population around 48%. Children also have, like a large size of the population, which is around 42%. So, seeing the composition of the population, India has a large of the population who belongs to the marginalized groups. First, I will start with who are the marginalized, why they are marginalized. Basically, they are marginalized, in terms of education, in terms of economic developments, and they are also excluded from the policy arena of the government. Initially, Government of India devised the planning process in 1951, and it has started allocating the fund for the communities, but it was basically not much focused on the, policy driven thing. It was mainly focused on the, incidentally. So after 1974 onwards, Government of India has started, allocating the fund specifically for the marginalized groups like scheduled caste, like scheduled tribes, and in 2006, Government of India has started the programs and policies for the minorities. For the sake of the Hindi listeners, I will mix both English, Hindi as well. What is the objective of this, whole budget analysis? So in this process, we have to differentiate and we have to assess the incidental benefits and policy benefits. Also, through this budget analysis, we have to see the quantum of the budget allocated for them, marginalized communities, and also we have to see the extent of the fund utilization for these marginalized groups. Further, we can assess through this budget analysis the physical achievements and outcome of the budget, because if we analyze the budget
only in terms of utilization, that is not going to give any meaningful result. So we need to look at the physical achievement and also the outcome of the budget. इन दिस सेक्शन पहले मैं फोकस करूंगा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे. हु आर द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया? हिंदुस्तान में मेनली 4 तरह के ऐसे ग्रुप हैं जिसको हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मान सकते हैं. दे आर द मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज. In India, minorities have been given, major chunk of the population is related to the Muslims. If we see the census 2001, we find that Muslim constitute 73% of the total population. But if we compare the socio-economic conditions of Muslims with other groups, we find that they are very poor from the other minority groups. Further, Government of India has not taken any concrete policy measure until 2005 for the development of minorities and particularly the Muslims. 2006 में भारत सरकार ने मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षिक और सामाजिक स्थिति को आकलन करने के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया. एंड सच्चर कमेटी हैज़ इस्टेब्लिश्ड दैट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इज़ एट पार विद द दलित एंड आदिवासीज. सच्चर कमेटी ने ये चीज़ साबित किया कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में जो सबसे पिछड़े वर्ग हैं, जिन्हें हम दलित और आदिवासी कहते हैं, उनके बराबर या उनसे नीचे है. हम लोग अगर देखें, सच्चर कमेटी के फाइंडिंग्स पे नज़र डालें, देन वी विल फाइंड दैट द लिटरेसी अमंग द मुस्लिम्स इज़ 59% एज पर सेंसस 2001, जो कि अगर हम देखें तो हमारा जो नेशनल एवरेज है, जो राष्ट्रीय स्तर शिक्षा का था, जो कि 65% था, दैट इज़ बिलो. मुस्लिम उससे नीचे हैं और उनका शैक्षिक जो स्थिति है वो राष्ट्र के जो एवरेज है उससे काफ़ी नीचे है. इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें और दूसरे इंडिकेटर्स पे देखें, ध्यान दें, तो हम ये पाते हैं कि पावर्टी, जो गरीबी रेखा है, उसमें भी वो काफ़ी पीछे रहे हैं. The percentage of share of poverty among Muslims in urban areas was 44% as per the findings of the Sachar Committee. Likewise, if we look at the work participation among the Muslims, particularly women's, we find that they have very low participation. Most of the population from the Muslim community is engaged in the unorganized sector. ज़्यादातर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. फर्दर, इफ़ वी सी द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, सो वी फाइंड दैट इन द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे हैव द वेरी लो शेयर. अगर हम देखें बैंकिंग सेक्टर में, अगर हम देखें गवर्नमेंट के रेगुलर डिपार्टमेंट्स में, अगर हम देखें स्टेट गवर्नमेंट के नौकरियों में, तो उसमें भी उनका रिप्रेजेंटेशन कोई 6 से 7% तक रहा है. इफ़ वी गो फर्दर इन द हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वी फाइंड दैट it is only 3% of the Muslims in the IAS, Indian Administrative Service. Likewise, only 1.8% of the Muslims are in the Indian Foreign Service. Only 4% of the Muslims are in the Indian Administrative Service, Indian Police Service. So, in the higher jobs, they are also lagging behind. If we see the share of the Muslims in terms of getting the loan
and access to banking facility, we also find that they are also lagging behind in this area. The share of Muslims in the unpaid outstanding amount, it was only 4.7% if we compare to the share of other minorities. They are like availing 6.5% of the outstanding amount of loan. Similarly, if we see the basic facilities for the Muslims, so we find that in Muslim concentrated areas, roads, sewerage, drainage and water facilities are also poor. अगर हम देखें तो मुसलमानों का जो इलाका है जहाँ मुस्लिम बसते हैं, वहाँ पे भी सच्चर कमेटी के फाइंडिंग के हिसाब से वहाँ की जो बेसिक सुविधाएं हैं उसमें भी काफ़ी कमियां देखी गई हैं, जैसे कि रोड, सीवेज फैसिलिटी, उसके अलावा पानी की व्यवस्था। इन सारे ही उस पे इंडिकेटर्स पे हम नज़र डालें तो वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ की कमी नज़र आई। इसी तरह से अगर सच्चर कमेटी के फाइंडिंग्स आने के बाद अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी अपनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड टू प्रोंज अप्रोच. First, they have initiated the 15-point program. Basically, 15-point program was focusing on allocating the separate fund for minorities as well as the physical targets in different government programs and schemes at the union government level. The next strategy was Government of India, which was adopted by Government of India, was the initiating some kind of programs and policies under the Ministry of Minority Affairs. Ministry of Minority Affairs was, came into picture in 2006-07. The 15-point program has a lot of programs like Indira Awas Yojana, like Suraj Jayanti Gram Swarozgar Yojana, Sarv Shiksha Abhiyan. Then some projects under JNNURM, Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission. Likewise, the Ministry of Minority Affairs has initiated multi-sectoral development programs, scholarship schemes. स्कॉलरशिप स्कीम्स में जो है वो 4 तरह की स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, जिसे हम कह सकते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप. So Government of India is running 4 kind of scholarship schemes for minorities since 2007. अगर हम आते हैं कि अभी तक माइनॉरिटीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना बजट एलोकेट कर रही है, हाउ मच फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एलोकेटिंग in the total plan fund for minorities. We have, from the analysis of the data from 2009-10 and 10-11, we find that in 2009-10 Government of India has allocated around 6% of the fund for minorities in the total fund. Similarly, in 2010-11 the allocation was made 5.3%. तो ये दिखा रहा है कि जो फंड एलोकेट किया गया माइनॉरिटीज़ के लिए, इट इज़ डिक्लाइनिंग. अगर हम आगे बात करें 15 पॉइंट प्रोग्राम्स में, तो 15 पॉइंट प्रोग्राम्स में जो स्कीम्स जो मैंने पहले भी बताया था कि वो हैं इंदिरा आवास योजना, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, integrated housing slum development programs, urban infrastructure for development of small and medium towns, basic services for urban poor, urban infrastructure and governance, सूरज जयंती शहरी रोजगार योजना. उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के एलोकेशंस हैं, एंड देयर आर सम अदर स्कीम्स विच आर रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, हज सब्सिडी एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो आगे अगर हम इस पर बात करें कि हाउ मच दिस
15-point program has been effective in terms of implementation, in terms of giving the benefits to the minority community. टोटल फंड में जो हमने अभी आपको बताया कि माइनॉरिटीज़ हैव बीन एलोकेटेड 6% इन 2009-10, 5.3% इन 2010-11. इसमें से जो ज़्यादातर पैसा है वो JNNURM के फंड से एलोकेट किया जा रहा है, विच कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 62% ऑफ द टोटल एलोकेशन फॉर माइनॉरिटीज़. अगर हम राज्यों में इसको देखें तो राज्यों में वहाँ पे अभी तक इसके रिपोर्टिंग में और इसके जो है क्रियान्वयन में अभी बहुत ज़्यादा जो है कोई एक तरह से ये हम नहीं कह सकते कि वहाँ पे ये बहुत कायदे से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है. वी हैव दी लाइक एक्सपीरियंसेस फ्रॉम बिहार, हरियाणा एंड वेस्ट बंगाल. वी फाउंड दैट द projects related to JNNURM, which constitute major chunk of the fund for minorities, like is not being reported properly. So we can't be sure that these funds are being utilized properly for them. Similarly, the Ministry of Minority Affairs, as I mentioned, running the scholarship schemes, then multi-sectoral development programs, and there are other several schemes, small schemes. So if we see the allocation of the Ministry of Minority Affairs, we find that the budgetary allocation for minority affairs was 7,000 crore during the 11th 5-year plan, which constitute 0.32% of the total plan outlay. If we compare the population of the minorities with this allocation, so it is very much reflects that the allocation was like very meager as their proportion of the population. अगर हम देखें कि जो एलोकेशन माइनॉरिटीज़ के लिए हुआ, अल्पसंख्यकों के लिए हुआ, उसको सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है उसके अगर एलोकेशन को देखें और 11वीं पंचवार्षिक योजना को अगर हम टारगेट करें तो उसमें 7,000 के आसपास एलोकेट हुआ था. और वो जो दिखा रहा है टोटल फंड में उसका जो शेयर था वो 0.32% था. इसी तरह से इफ़ वी सी द एलोकेशन फॉर 2010-11, सो द एलोकेशन फॉर माइनॉरिटीज़ वाज 0.64% इन द टोटल एलोकेशन. तो अगर हम इस साल के बजट में भी देखें तो एलोकेशन भी काफ़ी कम रहा है. फर्दर इफ़ वी एनालाइज द बजट विच वाज एलोकेटेड ड्यूरिंग द लास्ट 4 years, तो उसमें अगर हम लोग देखें कि कितना उपभोग हुआ है पिछले 4 सालों में जो भारत सरकार ने फंड एलोकेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा, तो उसमें वी फाइंड दैट द एलोकेशन वाज अराउंड 57%. फर्दर ये एलोकेशन इतना जो है पुअर क्यों रहा, इसमें इतनी कमियां क्यों रहीं, तो ये दर्शाता है कि देयर हैज़ बीन ए लॉट ऑफ implementation bottlenecks in the programs. We will discuss the implementation problem later on. अगर हम साल वाइज देखें कि जो एलोकेशन हुआ है 2007-8 से, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने धीरे धीरे एलोकेशन को बढ़ाया है. इन 2007-8 द एलोकेशन वाज 500 crore. Then it has increased up to 1,000 crore. Further it has increased 1,740 crores. In 2010-11 it has gone up to 2,600 and further it has gone up to 2,850 crores. ये एलोकेशन जो है ये बजट एस्टीमेट के लेवल पे था. इसी तरह से जब हम आरई पे देखते हैं रिवाइज एस्टीमेट पे, तो रिवाइज एस्टीमेट जो शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि फंड वाज एलोकेटेड बट मिनिस्ट्री वाज नॉट एबल टू यूटिलाइज ड्यू टू सर्टेन रीजंस, लाइक द मिनिस्ट्री वाज नॉट एबल टू like approve the plan and program sent by the
states or states were not able to send their plan and programs to central government, to Ministry of Minority Affairs. इसी तरह से अगर हम एक्सपेंडिचर्स को देखें तो इनिशियली व्हेन मिनिस्ट्री वाज स्टार्टेड it was not able to utilize the fund properly. Then gradually the ratio of fund utilization has gone up, and 2007 the utilization was just 39%, although the allocation was also very small. 2008-9 में allocation has gone up to 61%. इसी तरह से फिर 2009-10 में यूटिलाइजेशन वो 98% तक गया. इट हैज़ गॉन अप टू 98%. इन 2010-11 द एलोकेशन was 2600 and the utilization was around 56%, but the reporting was done up to December 2010. So basically we are referring here the data for 3 quarters. If we analyze the performance of these scholarship schemes meant for the minorities, we find that the funds are inadequate to provide the scholarship to a large number of beneficiaries. Basically, under pre-matric scholarship, government is providing around 5 lakh scholarship annually for the minority communities. If we see the data of enrollment from class 1 to 10 for Muslim communities in 2009-10, the enrollment was around 2 crores. So if we compare the number of scholarships and the number of beneficiaries, there is a clear mismatch. Further, the unit cost for pre-matric scholarship was around 1000 annually. So here we can also see the allocation for per unit cost for this scholarship scheme is also very low. The one thing which is very important, that there was also the low initial when program was started, the allocation was meager, but along with that there was a very low awareness generation among the parents. Further, Government of India has provided very meager amount of the almost negligible amount of the administrative cost for implementing the scholarship schemes. Also, there was a lack of proper institutional mechanism at district level and state level. We can cite here the example of Bihar and Haryana. In 2 states, there was a no proper institutional mechanism to implement the scholarship schemes. For later on, they have devised some kind of mechanism. Bihar has the State Department of Minorities at the state level, but it has no district welfare minority welfare department. Likewise, Haryana doesn't have the minority welfare department at district level, also at state level. Further, there were some problem in the initial phase to apply the application form under those scholarship schemes. Like, the procedure was very cumbersome. It requires the opening of the bank account. Also, it needs income certificate, then religion certificate. So due to these reasons, many applicants were not able to apply the scholarship form under these 4 scholarship schemes. If we see the progress of the fund allocation during the 11th 5-year plan, so under this scholarship, government under pre-matric scholarship, Government of India has fixed 25 lakh scholarship. The physical achievement was 34%. The total allocation under this
program was 1400 crore for 11th 5-year plan, and the achievement for up to 2010-11, Government of India has been able to allocate around 1268 crores. So if we compare the ratio of allocation with the financial target for 11th 5-year plan, so it is coming around 90%. भारत सरकार ने 11वीं पंचवार्षिक योजना में अल्पसंख्यकों के लिए जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप था उसको 25 लाख के आसपास फिक्स किया था। अभी तक 5 साल कंप्लीट होने के बाद ये अब पहुंच गया है 34 लाख के आसपास, जो कि एक वेलकम स्टेप है। लेकिन अगर हम देखें कि जो एलोकेशन हुआ है अभी पिछले 5 सालों में वो हो रहा है 1268 करोड़, जो कि अपने आप में बहुत अभी कम है और इसको आगे और बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी तरह से हम अगर देखें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फिक्स द टारगेट अराउंड 15 लाख। अगर हम उसको देखें अचीवमेंट के उसमें, तो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक में सिर्फ 4.2 लाख ही स्कॉलरशिप दे पाई है। इसी तरह से अगर हम फाइनेंशियल एलोकेशन की बात करें तो पोस्ट मैट्रिक में फाइनेंशियल एलोकेशन जो किया गया था वो था 1150 करोड़, और अगर हम नज़र डालें टोटल एलोकेशन जो 5 साल का हुआ है तो वो है 958 करोड़, विच इज़ कमिंग अराउंड 83%। इसी तरह से मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप पे अगर हम देखें तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स किया था 2,55,000 स्कॉलरशिप, जो कि अभी तक हो पा रहा है सिर्फ 37,000 के आसपास, 37,000 के आसपास। इसके लिए जो फंड एलोकेट किया गया था वो था 600 करोड़। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एलोकेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने वो है 500 के आसपास, जो कि आ रहा है 83%। इसी तरह से जो फ्री कोचिंग एंड एलाइड असिस्टेंस स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसमें कि प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए मदद दिया जाता है, और ये स्कॉलरशिप स्टेट्स में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये फंड किया जाता है। वहाँ पे वो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को, बच्चों को वो ट्रेनिंग दें और उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड करें। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25,000 टारगेट किया था, जो कि अभी 5,000 के आसपास भी पहुंचा है, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किया था 45 करोड़ रुपए, जो कि अभी वो एलोकेट कर पाए हैं, मतलब ज़्यादा ही एलोकेट कर पाए हैं, वो है 56 करोड़ के आसपास। अगर हम आगे देखें स्कॉलरशिप स्कीम के अलावा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अल्पसंख्यकों के जो माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें एक प्रोग्राम शुरू किया था। द प्रोग्राम वाज मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट वाज इनिशिएटेड इन 2007-8. The purpose of this program was to address the development deficit related to socio-economic in the minority concentrated districts. Government of India has selected 90 minority concentrated districts under this program. They have selected around 7 indicators under this program. This program was allocated around 2,750 crore rupees in the 11th 5-year plan. Later on, this amount has been raised up to 3,780 crores, which is a very welcome step. But on the front of the utilization of the expenditure, if we look at the proportion of the expenditure of the total project approved during last 4 years, we find that the utilization has been 23%. फर्दर अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो पैसा एलोकेट किया गया तो उसमें अभी तक गवर्नमेंट ने कितना कार्य पूरा किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स।
So we find that the completion rate under the different activities, the activities are like Indira Awas Yojana, construction of Anganwadi centers, construction of health sub-center, constructions of school buildings up to primary level or upper primary level, then the providing the drinking water facilities. तो इस तरह के एक्टिविटीज़ मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट के अंडर में सेलेक्ट किए गए थे। जैसा कि हमने बताया कि इसमें 90 माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड यानी अल्पसंख्यक बहुल इलाकों को शामिल किया गया था, जहाँ पे अल्पसंख्यकों की आबादी 25% के आसपास हो या उससे ज़्यादा हो, उन ज़िलों को शामिल किया गया था। और ये प्रोग्राम 90 ज़िलों में शुरू किया गया 2007-08 में। तो अगर हम देखें इसमें जो कंप्लीशन रेट जो हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं वो बहुत ही धीमा रहा है, और अगर हम डेटा एनालिसिस के थ्रू इसको देखें तो इट रेंज बिटवीन 20 to 28%। सारे सर्विसेज, सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उसको अगर हम देखें तो उसमें 20 से 30% के बीच में ही अभी तक कंप्लीट हो पाया है। और उसमें ये सबसे ताज्जुब वाली बात है कि हम अब बहुत करीब हैं 11वीं पंचवार्षिक योजना को कंप्लीट करने में। उसके अलावा जो सर्विसेज और जो सुविधाएं प्रोवाइड की जानी थी, जो दी जानी थी इस स्कीम के अंडर में, सो वी फाइंड दैट देयर हैज़ बीन ए लॉट ऑफ डाइवर्जन ऑफ द बेनिफिट्स टू माइनॉरिटी एरियाज़। इसका उदाहरण हम ऐसे दे सकते हैं कि इसमें जो इंदिरा आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना को इस मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम के अंडर में चलाया जाना था, बट द मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम इज़ फॉलोइंग द गाइडलाइन ऑफ द इंदिरा आवास योजना। एज पर इंदिरा आवास योजना, गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड 60% of the benefits to the scheduled castes and scheduled tribes. Remaining will go to minorities and disabled people and BPLs. अगर हम ज़िले में जाएंगे और ये बात करेंगे कि मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम इज़ मेंट फॉर द माइनॉरिटीज़, लेकिन वहाँ पे हम ये पाएंगे कि अगर 60% जो फ़ायदा गाइडलाइन के हिसाब से देना है वो SC/ST को देना है, तो ये एक तरह का प्रॉब्लम स्कीम में नज़र आया। We can call it the rigidity in these schemes. Multi-sectoral development scheme has followed the original guidelines of the SSA, of the ICDS, of the Indira Awas Yojana and other several schemes. It has not been given the much liberty, much flexibility to implement this scheme at the district level as per the given need and aspiration of the Muslim community. So it was the big problem in the guideline of the multi-sectoral development schemes. अगर हम फोकस करें सिर्फ 4 बड़े और मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स और राज्य को, so these are the 4 major states where Muslims are dominating, like Uttar Pradesh, West Bengal, Assam, Bihar. Uttar Pradesh has got 21 minority concentrated districts, West Bengal 12, Assam 13, Bihar 7. So if we see the approval of the plan by the Ministry of Minority Affairs, all the district plan of the multi-sectoral development schemes has been approved. If we look at the fund utilization of each states, we find that Uttar Pradesh has utilized 23%, West Bengal has utilized 38%, Assam has utilized 19%, and Bihar has utilized 18%. The all India average is 23%. अगर हम यहाँ पे देखें मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम, जो कि बहुत बड़ा स्कीम था भारत सरकार का, और ये 90 माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया गया. वी आर लाइक वेरी soon going to complete the 11th 5-year plan. By end of this year, we are going to complete 11th 5-year plan. But
still we are not able to utilize the fund. The average, all India average is just 23%. अब इसके पीछे अगर हम देखें तो क्या रीजंस रहे हैं लो यूटिलाइजेशन के, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि इम्प्लीमेंटेशन जो इस स्कीम का था वो काफ़ी पुअर रहा, इसकी वजह से पैसा जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाया। इफ़ वी लुक एट द implementation process, we find that there has been a delay in the completion of the activities mainly due to the required institutional setup. पहले हमने एक जिक्र किया था कि बहुत सारे राज्यों में जो ये मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट का पैसा गया, वहाँ पे ये देखा गया कि इसके लिए कोई प्रॉपर गवर्नमेंट का संस्था नहीं है जो इसको टेकअप करे, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया कि इसको करेगा कौन। यहाँ पे अगर हम बिहार का एग्जाम्पल दें या हरियाणा का एग्जाम्पल दें, तो वहाँ पे बिहार में वी कैन से दैट देर इज़ ए नो डिस्ट्रिक्ट लेवल माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। सो द प्रोजेक्ट वाज गिवन मेनली टू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर. District planning officer has to again find out who will implement the construction work of Anganwadi center, who will implement the construction of this health sub center and other services. So अगर हम देखें तो ये जो इंस्टीट्यूशनल जो हम लोग कहते हैं संस्था का अभाव, उसकी वजह से काफ़ी जो है वो एक्टिविटीज़ डिले हुई, और एक्टिविटीज़ डिले हुई तो उसकी वजह से जो है पैसा भी वो यूटिलाइज नहीं हो पाया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देयर हैज़ बीन ए पुअर प्लानिंग कैपेसिटी। जो हम लोग नियोजन की बात करते हैं कि ज़िले पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन रह रही है, जो वहाँ पे हैं लोग, उनकी ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी. If we want to identify the need and aspiration of the minority community, then we need to have a proper planning setup at district level. वहाँ पे ये देखा गया कि जब इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं था तो इसीलिए वहाँ पे स्टाफ नहीं था, स्टाफ जिन्होंने काम किया उस पर वो बहुत ऑर्डनरी तौर पे काम किए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा प्लानिंग प्रोसेस डिले हुआ एंड डिस्ट्रिक्ट्स वेर नॉट एबल टू सेंड दी their multi-sectoral development plan to the state, and state was not able to submit the multi-sectoral development plan to the central government, Ministry of Minority Affairs. तो इस तरह से सारा प्रोसेस जो है वो डिले हुआ. फर्दर when the fund was approved, plan was approved, then there was no institution, no executive agency to implement those activities. जैसा कि हमने जिक्र किया कि आंगनवाड़ी भवन और स्कूलों के कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से एक जो है एग्जीक्यूटिव एजेंसी की ज़रूरत थी. सर्व शिक्षा अभियान या ICDS जो स्कीम चल रहे हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स, दे हैव देयर ओन सेटअप. आइदर दे इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट थ्रू पंचायत और बाय देमसेल्फ. लेकिन इसके लिए क्या था, इसके लिए कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं था, तो उसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट एजेंसी को दूसरी एजेंसीज़ को हायर करना पड़ा और उसके लिए उनको काफ़ी समय लगा. इसी तरह से जो ऑलरेडी सर्व शिक्षा अभियान या ICDS सेंटर या और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करना था टू इम्प्लीमेंट दिस मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ऐसे से सर्व शिक्षा अभियान and other programs have to contribute in the multi-sectoral development programs in terms of identifying the beneficiary, in terms of identifying the targets and other aspects. तो वो लोग क्या था कि they were already busy with their own projects, तो वो उसमें हेल्प नहीं कर पाए. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था. Because of that the activities and services were have not been completed in the timely manner. Further, अगर हम आते हैं कि जो ओरिजिनल गाइडलाइन था और जो उसने ये चीज़ मेंशन किया कि माइनॉरिटी कम्युनिटी पे के किन चीज़ों पे फोकस करना है,
तो अगर हम उसको आगे देखें फर्दर वी विल सी द मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ अकॉर्डेड टॉप प्रायोरिटी टू द सेक्टर्स लाइक इंदिरा आवास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी education, drinking water supply, and health. But this multi-sectoral development program has not focused much on electricity, sanitation, and skill development and income generating activities. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 50 मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट स्कीम्स के अंडर में जो प्रोग्राम चलाए जा रहे थे वो अल्टीमेटली लाइन डिपार्टमेंट उसको चला रहे हैं. लाइन डिपार्टमेंट ऑलरेडी रनिंग दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. पर्पज़ ये था इसका कि मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू इस सारे प्रोग्राम्स को बहुत तेज़ी से माइनॉरिटी इलाकों को पहुंचाया जाए. लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो काम हुआ वो कंस्ट्रक्शन वर्क पे हुआ. डिस्ट्रिक्ट हैव नॉट फोकस्ड मच ऑन द स्किल डेवलपमेंट एंड इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ विच वाज द मेन नीड ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी. Then I will move to the next section that is related to the scheduled caste and scheduled tribes. As I have already discussed that scheduled caste and scheduled tribes constitute around 24% of the total population as per census 2001. Government of India has adopted the strategy of the scheduled caste sub-plan and tribal sub-plan for the development of scheduled caste and scheduled tribes. So before discussing the scheduled caste sub-plan and tribal sub-plan, I will begin with the reflection on the Union Budget 2011-12. अगर हम देखें तो इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या रही दलितों और आदिवासियों के लिए. तो ये चीज़ जो इम्प्रूवमेंट इस बार दिखा, इस बजट में दिखा, उसमें यह था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 2 सेपरेट स्टेटमेंट टू रिपोर्ट द एलोकेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. अर्लियर देयर वाज ए नो प्रॉपर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म एंड टू हैव द सेग्रीगेट डेटा ऑन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन टर्म्स ऑफ द फंड एलोकेशन. दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये रहा कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू एलोकेट द fund for scheduled caste and scheduled tribes in the separate minor head. जो हमारा बजट का व्यवस्था है उसमें हम 6 तरह के अकाउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं. द पर्पज़ ऑफ दिस माइनर हेड विच वी कॉल इट 789 and 796 is to protect the diversion of benefits from going to the other, like non-scheduled tribes and non-scheduled caste beneficiaries. अगर इस 789 और 796 के थ्रू जब पैसा जाएगा तो वो पैसा डाइवर्ट नहीं हो सकता है, उसको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कम्युनिटी के लिए ही खर्च करना होगा. Further, the government of India has made the allocation for scheduled caste sub-plan, which has increased from 23,000 crore to 30,000 crore. Further, for TSP, the allocation has increased from 8,990 crore to 17,371 crore. इसी तरह से जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो कि सारा पैसा जो है वो ट्राइबल्स पे खर्च करती है, उसका एलोकेशन भी इंक्रीज़ किया. इसमें जो है बहुत ज़्यादा तो इंक्रीज़ नहीं किया है, बट देर हैज़ बीन ए मार्जिनल इंक्रीज़ फ्रॉम 3,200 to 3,600 crore. Further, there has been an increase in the budget allocation for primitive tribal groups. It has increased from rupees 185 crore to 244 crore. एक महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस बजट में रही है
वो ये रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड ए न्यू प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अगर हम बात करें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की, तो ये इंट्री लेवल पे जो बच्चे 1 से और 10 के बीच में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पहले ट्राइबल के लिए कोई प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं था। शेड्यूल कास्ट के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप था, लेकिन वो स्कॉलरशिप जो है वो मैनुअल स्कैवेंजर्स को दिया जा रहा था। सो इट इज़ ए वेरी वेलकम स्टेप on this front. Further, through this scheme, the around 40 lakh scheduled caste and around 40 lakh scheduled caste and scheduled tribes students will get benefit under this scheme. अगर हम आगे और बढ़ें और देखें कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या गवर्नमेंट का पब्लिक स्पेंडिंग नीति रहा है, जो सरकारी खर्चे का नीति क्या रहा है, उसको अगर हम लोग देखें तो ये देखेंगे कि शुरू में क्या था कि यूनियन बजट में ज़्यादातर फोकस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशियली हैज़ फोकस्ड इन इट्स प्लानिंग प्रोसेस मोर ऑन द सेक्टोरल बेसिस। देयर वाज नो फोकस ऑन द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसमें शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स जो प्लान है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन पे फोकस करना शुरू किया एंड इट स्टार्टेड 1974 ऑनवर्ड्स। इसी तरह से जो बजट था, बजट पहले वो जो उनका बजट का फॉर्मेट था, जो एनुअल बजट हमारा आता है, उसमें देयर वाज नो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म ऑन द एलोकेशन ऑफ बजट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि प्लानिंग कमीशन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये मार्जिनल कम्युनिटीज़ जो कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनको अलग से बजट में मतलब दिखाया जाए और उसके साथ साथ इनके लिए अलग से जो टोटल हमारा प्लान फंड है उसमें इनके लिए एलोकेशन किया जाए। प्लानिंग कमीशन ने इस चीज़ के लिए भी ध्यान दिया कि जो बेनिफिट्स सबको जा रहे हैं वो दलितों और आदिवासियों के लिए जा रहे हैं। वी कॉल इट इंसिडेंटल बेनिफिट, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। और देन प्लानिंग कमीशन हैज़ रियलाइज टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन इंसिडेंटल बेनिफिट्स एंड पॉलिसी ड्रिवन बेनिफिट्स, और इसके नतीजे में शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। द प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया initiated allocating a separate plan since 1979 for scheduled caste and also since 1974 for scheduled tribes. इसमें इसकी विशेषता क्या रही थी? इसमें विशेषता ये रही थी कि जो प्लान फंड हमारा होता है, प्लान फंड ज़्यादातर वो होता है प्रोग्राम और स्कीम्स के लिए। The plan fund is basically related to the schemes and programs which is meant directly for the beneficiaries. Likewise, we have another category which we call it non-plan. Non-plan में ज़्यादातर क्या होता है फोकस? वो ये होता है कि मेंटेनेंस करना है सेटअप को, उसके अलावा सैलरीज, उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट पे जाता है। तो जब हम एनालाइज करते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के बजट को, तो वी फोकस मोर ऑन द प्लान फंड। सो हेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज started the scheduled caste sub plan and tribal sub plan. Earlier there was a no reporting mechanism. Government of India has started bringing out a statement since 2005-6. इस जो statement की हम बात कर रहे हैं, this statement basically have a kind of reporting mechanism which different line ministries allocate fund for the scheduled caste and scheduled tribes. So we can easily track the quantum of fund which is being allocated for scheduled caste and scheduled tribes under the different ministries and different departments. ये स्टेटमेंट जो है वो दो पार्ट में होता है। स्टेटमेंट फॉर शेड्यूल कास्ट इज कॉल्ड स्टेटमेंट 21
and the budget statement for scheduled tribes is called statement 21A. ये दोनों स्टेटमेंट अभी इस साल से शुरू किए गए हैं, इससे पहले दोनों एक साथ ही आते थे, तो उसमें हमें ये पता नहीं चल पाता था कि कितना फंड शेड्यूल कास्ट के लिए ईयर मार्क किया गया है, कितना शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ईयर मार्क किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल से इस स्टेटमेंट को दो भाग में बांट दिया है। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, स्टेटमेंट 21 एंड स्टेटमेंट 21A। इसी तरह से पहला जो इसमें स्टेटमेंट 21, स्टेटमेंट 22 में जो एलोकेशन दिए जाते हैं, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट द स्टेटमेंट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन स्कीम्स इन विच देर इज ए 100% एलोकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इसमें आमतौर से जो पहला पार्ट होता है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और वो स्कीम्स जो कि ख़ास तौर से 100% एलोकेट कर रहे हैं फंड फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो ये पहला भाग होता है स्टेटमेंट का। फर्दर वी हैव वन मोर सेक्शन, वन मोर पार्ट विच रिपोर्ट्स द एलोकेशन ऑन स्कीम्स वेयर एटलीस्ट 20% ऑफ द एलोकेशन इज ईयरमार्क्ड फॉर SCs एंड STs। इसमें क्या होता है, वी कैन हैव सम एग्जाम्पल लाइक सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। देर आर सेवरल प्रोग्राम्स which are coming under scheduled caste and scheduled tribes. They at least have to allocate 20% of the fund under those schemes and programs. इसी तरह से जो स्टेटमेंट है, I have already mentioned that the department and ministries have to report their fund allocation under this two statement, statement 21 and statement 21A. जो स्टेटमेंट है इससे हमें क्या पता चलता है, वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द बजट आउटलेज ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स मेंट फॉर बेनिफिट्स ऑफ द SCs एंड STs। इसी तरह से इसके थ्रू हम लोग ये देख सकते हैं कि जो टोटल बजट का प्लान फंड का आकार है उसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को कितना जो है प्रतिशत फंड एलोकेट किया जा रहा है उनके आबादी के हिसाब से। बिफोर 2010-11 देयर वाज नो प्रोविज़न फॉर सेग्रीगेटिंग फॉर सेपरेट फंड एलोकेशन ऑन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। द स्टेटमेंट वाज प्रोवाइडिंग द कंसोलिडेटेड फंड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये जो व्यवस्था की गई है वो इस साल से की गई है, तो इससे हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि टोटल प्लान फंड में कितना प्रतिशत दलितों के लिए और कितना प्रतिशत आदिवासियों के लिए दिया गया है। अर्लियर वी यूज टू सेग्रीगेट द फंड टेकिंग द proportion of the SC/ST population and total fund earmarked for SCs and STs। तो रफली हम लोग क्या करते थे कि शेड्यूल कास्ट के लिए 2/3 और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1/3 के हिसाब से उसको बाइफरकेट करते थे, जो स्टेटमेंट हुआ करता था। लेकिन अब वो प्रॉब्लम इस साल से सॉल्व हो गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा वेलकम स्टेप है। आगे हम बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को कहाँ कहाँ से फंड मिलता है। व्हाट हैज़ बीन द फंडिंग सोर्सेज फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो दो प्लान स्ट्रेटेजी है, शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने टोटल प्लान फंड में से वहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन है उसके पॉपुलेशन के आधार पे पैसा एलोकेट करना है। जो द फर्स्ट सोर्स ऑफ द फंड एलोकेशन अंडर SCP TSP is the fund allocation by the states। then the next one is the special central assistance। इसमें स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन राज्यों को फंड देती है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन भारी संख्या में हो, कम से कम 50% के आसपास हो। तो उन जो भारी
जो घनित एरियाज़ हैं जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट ज़्यादा रह रहे हैं उनके लिए एक प्रोविज़न है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, जिसे हम SCA बोलते हैं। उसके अलावा देर इज़ ए वन मोर सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275(1). इसमें क्या होता है, इसमें जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है जिसे हम कहते हैं शेड्यूल्ड एरियाज, देयर आर आई थिंक 8 स्टेट्स हु गेट्स द बेनिफिट्स अंडर द आर्टिकल 275(1). लेकिन ये सुविधा शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड स्टेट्स के लिए नहीं है। फर्दर अंडर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स देर इज़ वन मोर सोर्स of the fund which is the central sector schemes. Likewise there is a centrally sponsored schemes. भारत सरकार जो दलितों और आदिवासियों के लिए स्कीम या विकास के लिए जो ओवरऑल विकास के लिए जो परियोजनाएं चलाती हैं उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जिसमें भारत सरकार जो है वो 100% जो है फंड वो एलोकेट करती है, उसमें राज्यों का शेयर नहीं होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में राज्यों का शेयर होता है। तो दीज आर द टू काइंड ऑफ द स्कीम्स विच आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट्स, बट द फंड इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइड 100% of the fund to these states. For example, the ICDS is the central sector schemes. Likewise, government of India has one centrally sponsored schemes. Under this, state have to provide some matching share under the centrally sponsored schemes. सर्व शिक्षा अभियान is the example of the centrally sponsored schemes. तो इन दोनों जो सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इसमें दलितों और आदिवासियों के लिए उनके पॉपुलेशन के आधार पर यहाँ पे केंद्र सरकार के लेवल पे फंड एलोकेट किया जाता है। इसी तरह से जब ये राज्य में जाएगा तो राज्य में वहाँ का पॉपुलेशन देखा जाएगा और उसके हिसाब से जो है वो फाइनेंशियल और फिजिकल टारगेट को फिक्स किया जाएगा। देयर इज़ वन मोर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्लान विच वी कॉल इट SC/ST फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसके थ्रू भी जो है वो SCs और STs को जो है वो पैसा जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस साल के बजट 2011 और 12 में दलितों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना पैसा एलोकेट किया, उनका जो है वो क्या शेयर बन रहा है। इन द यूनियन बजट 2010-11 वी फाइंड दैट आउट ऑफ 105 departments and ministries, only 24 department and ministries have allocated the fund under schedule caste subplan. इसमें जो है भारत सरकार के पास जो 105 विभाग और मंत्रालय हैं उसमें से 24 मंत्रालयों ने SCP के अंडर में पैसा एलोकेट किया। The other ministries have been kept from the purview of the SCP on the ground that they are engaged in the mainly regulatory policy making and they are also involved in the scientific research and implementing the infrastructure projects. So under those ministries government is not be able to quantify the benefits. ये कितने मंत्रालय होंगे, ये मंत्रालय जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा छोड़ दिया है जिसमें SCP और TSP का पैसा एलोकेट नहीं हो सकता है। देर आर अराउंड 43 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स वेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ have no obligation to allocate the fund under SCP. इसी तरह से अगर हम देखें इस साल के बजट में SCP में कितना पैसा एलोकेट हुआ है, तो जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था कि when we see the percentage of allocation for SCs, we always refer to the plan fund. There are two kind of the funds, non-plan and plan. So, as per the Union Budget 2011-12, we find that under SC/SP,
only 9% of the total plan allocation was made. But actually, Government of India should have allocated at least 16% of the total plan fund. तो ये जो अभी अदर मिनिस्ट्रीज जो बची हुई हैं जिनको छोड़ दिया गया है, नॉन ऑब्लिगेटरी हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें कोशिश करे और इसमें भी फंड एलोकेट करे तो वी वहाँ पे हम जो 16% का टारगेट है वी कैन अचीव दैट. इसी तरह से अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तो ये रेगुलर बजट आता है, लेकिन जो उनका डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है जो कि मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वित्त मंत्रालय को अपने लेखा अनुदान के लिए भेजती हैं. हर मिनिस्ट्रीज़ हर साल अपना टारगेट करती है और उसको हम लोग डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स कहते हैं. तो पिछले साल का अगर हम लोग डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स को अगर देखें तो उसमें हम ये पाते हैं कि जो रेगुलर गवर्नमेंट का जो बजट का डॉक्यूमेंट्स है उसको हम कंपेयर करें डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट से तो 2011 और 12 में हमें ये मिला कि ओनली देयर आर 4 मिनिस्ट्रीज विच आर रिपोर्टिंग एक्चुअली the fund allocation in the detailed demand for grants. Detailed demand for grants basically provides the like 6 tier of the accounting system जिसमें मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब माइनर हेड, डिटेल हेड और ऑब्जेक्ट हेड तक का डिटेल्स होता है. तो दिस इज़ द वेरी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट और इसको जब हम ट्रैक करते हैं तो हम ये पाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन जो मंत्रालय और विभाग हैं 105 उसमें ओनली 4 ministries and departments are reporting the fund allocation for scheduled caste and which we call scheduled caste sub plan. अगर हम बात करते हैं प्रतिशत की बात कि कितना फंड एलोकेट हुआ है इस डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स के थ्रू, इट इज़ कमिंग अराउंड 1.28%, जो कि अपने आप में जो हमारा रेगुलर बजट आता है जिसको हम बजट डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट 21 बोलते हैं उसको अगर कंपेयर करते हैं डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट से तो वो और भी कम हो जाता है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2011 और 2012 में जो हमारा स्टेटमेंट 21 है उसके थ्रू कितना पैसा एलोकेट हुआ. In 2010-11, if we focus at BE figure, so Government of India has allocated the fund under scheduled caste sub plan 23,795 crores. और अगर हम देखते हैं कि भारत सरकार का जो टोटल प्लान एलोकेशन का साइज़ है वो है 2,84,000 करोड़ रुपीस. तो उसके हिसाब से जो फंड एलोकेट किया गया है विच इज़ कमिंग अराउंड 8.38%. अगर हम 2011 के रिवाइज फिगर को लें, रिवाइज फिगर आमतौर से जो है वो शुरू के 2 और 3 क्वार्टर जो होते हैं फाइनेंशियल ईयर के उसको बताता है. तो रिवाइज फिगर को अगर हम लें तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एलोकेटेड 23,000 करोड़ और भारत सरकार का जो टोटल प्लान साइज़ था वो था 3 लाख करोड़ के आसपास. देन द शेयर ऑफ द एलोकेशन अंडर SCP ATSP वाज अराउंड 7.65 करोड़. 2011 में 11-12 के बजट को हम देखते हैं तो ये आ रहा है 9% के आसपास. अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्राइबल सब प्लान में क्या फ़ंड एलोकेट हुआ है, आदिवासियों के लिए कितना प्रतिशत प्लान फंड एलोकेट हुआ है. सो वी फाइंड दैट देयर आर 105 डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज एंड आउट ऑफ दैट only 27 ministries and departments have allocated the fund under tribal sub plan. ट्राइबल सब प्लान को अगर हम कंपेयर करें शेड्यूल कास्ट सब प्लान से तो इसमें ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ जो है वो अपना फ़ंड रिपोर्ट कर रही हैं. लेकिन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम जो शेड्यूल कास्ट का था वो अगेन यहाँ पे वही प्रॉब्लम है. द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर क्लेमिंग दैट देयर इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फंड्स. उनका कहना यह है कि ये मिनिस्ट्रीज़ जो है वो फ़ंड एलोकेट नहीं कर सकती इसलिए कि उनका जो काम करने का नेचर है, दे हैव द रेगुलेटरी नेचर, दे आर इन्वॉल्व इन द पॉलिसी मेकिंग,
they have the larger infrastructure project. So the benefits for the tribals is not quantifiable. वो जो है इन ये सारी मिनिस्ट्रीज जो है वो जो बेनिफिट्स है उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकती, उसको आंकड़ों में नहीं ला सकती हैं. तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है. इसमें भी वही चीज़ है कि करीब 40 से 43 मिनिस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी फंड एलोकेट नहीं कर पा रही हैं. और इन मिनिस्ट्रीज़ का नेचर जो है उसमें जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसके अलावा और बड़ी मंत्रालय हैं, रेलवे है, इस तरह से जो आईटी और जो ऐसी बड़े विभाग हैं जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे सकते हैं दलितों और आदिवासियों को, जिससे कि उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है. बट दीज मिनिस्ट्रीज हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ दिस SCP एंड TSP स्ट्रेटेजी. अगर हम देखते हैं कि कितना फंड एलोकेट हुआ 2010-11 में इन दी टोटल प्लान फंड, तो TSP में अगर हम देखें तो TSP में जो फंड एलोकेट हुआ है वो कुल प्लान फंड का 5% है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एलोकेटेड ओनली 5% ऑफ द टोटल प्लान एलोकेशन अंडर द ट्राइबल सब प्लान. अगर हम कंपेयर करें डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स को, जो कि अभी हमने जिक्र किया था कि वो हर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजते हैं और उसी के बेसिस पे जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री फंड एलोकेट करती है. तो उस अगर डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स को हम अगर उसका अध्ययन करें, फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स वी फाइंड दैट देयर आर ओनली 6 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स विच आर एलोकेटिंग द फंड अंडर ट्राइबल सब प्लान. अगर हम और आगे बढ़ें और ये देखें कि ट्राइबल सब प्लान में कितना फंड एलोकेट हुआ है टोटल प्लान फंड का, तो अगर हम 2010-11 के फिगर को लें, पिछले बजट के फिगर को लें, तो पिछले जो बजट में टोटल प्लान फंड था और जो डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स में फंड रिपोर्ट किया गया था, उसमें अगर प्रतिशत को देखें तो इट इज़ कमिंग अराउंड 1.17% इन द टोटल प्लान फंड. इसी तरह से अगर टोटल पोजीशन अगर हम देखें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का, तो गवर्नमेंट इज स्टिल नॉट एबल टू मीट द टारगेट्स विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ promised in its guideline. Government of India has constituted a Naren Jadhav committee. Naren Jadhav committee report has promised that from this year, Government of India will be able to allocate at least 16% of plan fund for SCs and at least 8% plan fund for tribes, but we find here that still there is a gap in the allocation. So, well friends, it was a well researched and an analytical lecture. I hope the lecture must have benefited all of you and you have understood the perspective in which the budget making and how it helps and reaches to the marginalized sections, and what a new kind of things also being undertaken in this budget and are likely to be taken in the future also, as Mr. Javed Alam Khan suggested what the thing happening at the budget level. So with this word we would like to conclude the lecture here because we are running short of the times, and I thank all of you for watching the lecture, and on your behalf I thank Mr. Khan for delivering such a wonderful and insightful lecture. Thank you very much.